क्या कनाडा की राजनीति में नया अध्याय जुड़ने वाला है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल योगेश की रिपोर्ट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे भारतीय मूल के नेता की जिन्होंने कनाडा की राजनीति में हलचल मचा दी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं चंद्र आर्य की। भारतीय मूल के सांसद, खालिस्तानियों के मुखर आलोचक और अब कनाडा के प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में शामिल। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कौन है चंद्र आर्य और उनकी कहानी क्या है और कैसे उन्होंने जस्टिन ट्रूडो से दूरी बनाकर खुद को कनाडा के राजनीतिक मंच पर एक सशक्त नेता के रूप में स्थापित किया है। Hello, I'm Chandra Arya, Member of Parliament for Nepean. I'm running to be the next Prime Minister of Canada to lead a small, more efficient government to rebuild our nation and secure prosperity for future generations. We must make tough decisions now, not only to revitalize our economy, but also to ensure a stable society. I have the solutions and the real determination to make it happen. दोस्तों, चंद्र आर्य ये नाम भारतीयों के लिए ज्यादा नहीं सुना गया। इनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते कि चंद्र आर्य कौन है, लेकिन चंद्र आर्य अब प्रधानमंत्री पद की दौड़ में है कनाडा में। चंद्र आर्य का जन्म भारत के कर्नाटक राज्य के तुमकुरू में हुआ था। साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले चंद्र ने एमबीए की पढ़ाई की और फिर 2006 में कनाडा का रुख किया। दोस्तों, उनका सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक बिजनेस लीडर के रूप में पहचान बनाने के बाद उन्होंने 2015 में राजनीति में कदम रखा और पहली बार सांसद बने। इसके बाद 2019 में फिर से जीत हासिल की, लेकिन असली कहानी शुरू होती है जब वो कनाडा में बढ़ती हुई खालिस्तानी गतिविधियों के खिलाफ मुखर हो जाते हैं। Oh shit. Oh shit. Oh man. Few days back, Khalistan Movement leader in Canada and president of Sikhs for Justice, which organizes the so-called referendum, Gurpatwant Singh Pannon, attacked Hindu Canadians, asking us to leave Canada and go back to India. I've heard from many Hindu Canadians who are fearful after this targeted attack. I urge Hindu Canadians to stay calm but vigilant. Please report any incident of Hindu phobia to your local law enforcement agencies. The Khalistan movement leader is trying to provoke Hindu Canadians to react and divide the Hindu and Sikh communities in Canada. Let me be clear. Vast majority of our Canadian Sikh brothers and sisters do not support Khalistan movement. Most Sikh Canadians may not publicly condemn the Khalistan movement for several reasons, but they are deeply connected to the Hindu-Canadian community. Canadian Hindus and Sikhs are connected through family relationships and shared social and cultural ties. दोस्तों, ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हुए हमले के समय चंद्र आर्य ने न सिर्फ इस घटना की निंदा की, बल्कि कनाडा में रह रहे हिंदुओं की आवाज भी बने थे और उनकी बेबाकी ने उन्हें कनाडा के हिंदू समुदाय का हीरो बना दिया था। जी हां, कनाडा में हिंदू समुदाय के हीरो की पहचान है चंद्र आर्य की। This direct attack on Hindu Canadians by the leader of Canadian Khalistan movement is further escalation of the recent attacks on Hindu temples and public celebration of the assassination of Hindu Prime Minister Indira Gandhi by terrorists. Canada has high moral values and we fully uphold the rule of law.
I can't understand how glorification of terrorism or a hate crime targeting a religious group is allowed in the name of freedom of speech and expression. खालिस्तानी मुद्दों पर अक्सर मुखर रहते हैं और खालिस्तानियों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं चंद्र आर्य। अब सवाल यह है कि चंद्र आर्य की प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी भारत के लिए क्यों अहम है। दोस्तों, कनाडा इस वक्त आर्थिक चुनौतियों और सामाजिक विभाजन से जूझ रहा है। ट्रूडो के इस्तीफे के बाद देश को एक ऐसे नेता की जरूरत है जो बड़े फैसले लेने का दम रखता हो। चंद्र आर्य ने साफ कहा है कि वो कनाडा को आर्थिक स्थिरता और समृद्धि के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। Canada deserves leadership that isn't afraid to make big decisions. Decisions that rebuild our economy, restore hope, create equal opportunities for all Canadians, and secure prosperity for our children and grandchildren. Bold political decisions are not optional, they are necessary. I'm stepping forward to take on this responsibility and lead Canada as its next Prime Minister. Join me in this journey. Let's rebuild, revitalize, and secure the future for all Canadians and for generations to come. तो क्या कनाडा के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे चंद्र आर्य? उनकी सोच है छोटी और कुशल सरकार जो देश की समस्याओं का समाधान करे। वो मध्यम वर्ग और कामकाजी परिवारों की स्थितियों को सुधारने के लिए भी साहसिक कदम उठाने की बात कर रहे हैं कनाडा में। यानी कनाडा में चंद्र आर्य अब लोकप्रिय हो रहे हैं और प्रधानमंत्री पद की रेस में शामिल हो गए हैं। अब बात करते हैं उनकी राजनीति की। चंद्र आर्य कभी जस्टिन ट्रूडो के करीबी थे, लेकिन जब ट्रूडो की नीतियों में भारत विरोधी रवैया दिखा तो उन्होंने उनसे दूरी बना ली। उनका यह फैसला दिखाता है कि वो अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता नहीं करते। खालिस्तानी गतिविधियों के खिलाफ उनकी कड़ी आलोचना और हिंदू समुदाय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन्हें कनाडा में एक अलग पहचान देती है। दोस्तों, वो न केवल भारतीय मूल के लोगों के लिए बल्कि पूरे कनाडा के लिए एक मजबूत विकल्प बन सकते हैं। जी हां, चंद्र आर्य एक मजबूत विकल्प बन सकते हैं कनाडा में। कनाडा की जनता और युवा पीढ़ी चंद्र आर्य के संघर्ष से प्रेरित है। दोस्तों, चंद्र आर्य की यह यात्रा सिर्फ एक भारतीय की यात्रा नहीं है, बल्कि उस सोच की यात्रा है जो बदलाव लाने के लिए खड़ी होती है। अब सवाल यह है कि क्या वो लिबरल पार्टी के अगले नेता बन पाएंगे? क्या कनाडा उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करेगा? इस वक्त कनाडा की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और यह सवाल कनाडा की राजनीति में अहम हो गया है। यह तो वक्त बताएगा कि चंद्र आर्य कनाडा के प्रधानमंत्री बनते हैं या नहीं, लेकिन इस दौड़ में शामिल होकर कनाडा की राजनीति में उन्होंने एक नई अलग जगह दी है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या चंद्र आर्य कनाडा के प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत रखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? चंद्र आर्य का कनाडा का प्रधानमंत्री बनना भारत और कनाडा के रिश्तों के लिए कितना अहम होगा? और जो खालिस्तानी हैं, क्या प्रधानमंत्री बनने के बाद चंद्र आर्य उन पर कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं? तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो, हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों।